Good morning, students. We have learnt about the properties of quadrilaterals, and now we will solve exercise 11.3. The first question is, in the given figure, identify and name two parallelograms, a rectangle and a trapezium. So if we look into this figure, then first we have to find out two parallelograms. So parallelograms is a quadrilateral in which pair of opposite sides are parallel and equal. So if we look carefully, then side PS is equal and parallel to side QR, and side PQ is equal and parallel to side SR. So one parallelogram is PQRS. Similarly, DEFG is also a parallelogram. Second, we have to identify a rectangle. So a rectangle is a parallelogram in which each angle is 90 degree. So DEFG is a parallelogram. Third is a trapezium. So a trapezium is a quadrilateral in which only one pair of opposite side is parallel. So if we look into this figure, then A, B, C, Q is a trapezium. Okay. Second question, name each of the following quadrilaterals. All sides are equal. So a quadrilateral is given whose all sides are equal. So we know that sides of a rhombus and a square are equal. So this quadrilateral can be a square or a rhombus. Second, one opposite pair is parallel and non-parallel sides are equal. So this is the definition of isosceles triangle. Isosceles trapezium. Third is two pairs of adjacent sides are equal. So this will be kite. Diagonals bisect each other at right angle, but each angle is not equal to 90 degree. So diagonals of square and rhombus bisect each other at right angle, but each angle is not equal to 90 degree, so it can't be square. So the fourth quadrilateral will be rhombus. Now third question, identify the following figures. First figure, look, all sides are given to be equal and each angle is of 90 degrees, so this will be square. Second, all sides are equal but angle is not equal to 90 degrees, so it will be a rhombus. Third, only one pair of opposite side is parallel, so this will be a trapezium. And fourth, each angle is given to be 90 degree. Opposite sides are equal, that means this side is given to this side and this side is equal to its opposite side, and diagonals bisect each other at a right angle, so it will be a rectangle. Student, I'm Shashi Yadav, your Hindi teacher. Today I will teach chapter 19 वाक्य चैप्टर को हमने काफ़ी इसके बारे में 2 वीडियो बना चुके हैं। अब इसका अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद के बारे में जानेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। नंबर 1, विधानवाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी कार्य के करने या होने की स्थिति का पता चले उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे राम पाठ पढ़ रहा है, बाग में फूल खिले हैं, वह बीमार है, ठंडी हवा चल रही है। ये सारे काम के होने के तरीके के बारे में बता रहा है, इसलिए ये विधानवाचक वाक्य है। नंबर 2, निषेधवाचक वाक्य, इस प्रकार के वाक्य में किसी काम या कथन की मनाही होती है। वह कल नहीं आएगा, बोतल में दवा नहीं है। यहाँ पे सभी बातों में, सभी वाक्यों में निषेध होने, नहीं की सेंस आ रही है, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया जा रहा है, तो निषेधवाचक है। नंबर 3 है प्रश्नवाचक वाक्य, इस प्रकार के वाक्य में प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको डर लगता है, अब तुम
कब चलोगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी आता है, तो इसलिए जिन वाक्यों में क्वेश्चन पूछा जाता है वे प्रश्नवाचक चिन्ह वाक्य कहलाते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। नंबर 4, इच्छावाचक वाक्य। इस प्रकार के वाक्य में वक्ता की इच्छा, शुभकामना, आशीष आदि का बोध होता है। तो यहाँ पे जैसे तुम्हारी यात्रा शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो, जब हम किसी के लिए इच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं, विश देते हैं, तो इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। नंबर 5 है आज्ञावाचक वाक्य। इस प्रकार के वाक्य में आज्ञा, आदेश या अनुरोध होता है, जैसे तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करें। यहाँ पे आज्ञा देने और लेने का बोध हो रहा है, इसलिए यह आज्ञावाचक है। 6 है संकेतवाचक। ये वाक्य किसी शर्त या के कारण जुड़े होते हैं। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यदि विनय आएगा तो मैं भी चलूंगा। इस प्रकार के वाक्य विस्मयवाचक कहलाते हैं। इन सभी को रिवीजन कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ। जो हमने अभी वाक्य के 6 प्रकार पढ़े हैं, 2 अभी बचे हुए हैं, उनके बारे में जानते हैं। जैसे संकेतवाचक तक हमने नेक्स्ट वीडियो में कर लिया था, अब इससे आगे देखते हैं। नंबर 7, विस्मयवाचक वाक्य। इस प्रकार के वाक्य में शोक, विस्मय, आश्चर्य, घृणा आदि भाव का प्रकट किए जाते हैं। जैसे वाह कमाल कर दिया, आहा तुम आ गए, हाय मैं लुट गया। हाय मैं लुट गया में दुख का बोध हो रहा है। अरे तुम कब आए, यहाँ पे हम आश्चर्य का बोध हो रहा है। अरे आहा तुम आ गए, यहाँ खुशी का, वाह कमाल कर दे, यहाँ भी खुशी का बोध हो रहा है। तो ये विस्मयवाचक वाक्य है। नेक्स्ट है संदेहवाचक वाक्य। इस प्रकार के वाक्य में काम के होने के बारे में संदेह की भावना प्रकट होती है। जैसे शायद आज वर्षा हो, संभवतः आज मोहन आए। इस प्रकार के वाक्य संदेहवाचक वाक्य है। इसी चैप्टर को अच्छे से दोहराइए सभी, इसमें कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। Hello everyone. Greetings of the day. Welcome to MLP International School. Hope you all are safe and healthy at your home. Today we are going to choose the correct answer of chapter 19, page number 179. The name of the chapter is Major Relief Features of the World. So please open your book. The first is the height of Mount Everest is, Mount Everest की ऊंचाई कितनी है? 8,850 meters, 10,000 meters, C is 8,500 meters, and D is 9,500 meters. The right answer is 8,850 meters. Dash mountains are formed when there is pressure from both above and beneath the earth. कौन से माउंटेन्स हैं जो बनते हैं प्रेशर, किसके प्रेशर से? बोथ, जो अर्थ सरफेस के ऊपर से भी प्रेशर लगे और नीचे से भी, तो वो कौन से माउंटेन्स हैं? A. Fold mountain, B. Block mountains, C. Volcanic mountain, and D. Graben mountains. The right answer is fold mountains. Next is a simple fold mountain has downfolds or valleys called. Simple fold mountains जो हैं उनमें downfolds होते हैं, valleys होती हैं, उनको क्या कहते हैं? Downfolds, first is syncline, B. vents, C. anticlines, and D. fault. The right answer is A. synclines. Next is black soil is excellent for growing. Black soil अच्छी होती है
किस चीज़ की ग्रोइंग करने के लिए, किस चीज़ की पैदावार करने के लिए? फर्स्ट ए इज़ कॉटन, बी इज़ जूट, सी इज़ टी एंड डी इज़ wheat. So the right answer is A, cotton. Cotton is the right answer. Next is a block mountains is also called. Block mountains को और किस दूसरे नाम से जानते हैं हम? A, horst, B, fault, C is graben and D is tableland. The right answer is horst. Now choose the correct answer is completed. Next is write true false. Now we are going to do true false. First is fold mountains are also called young fold mountains as they were formed 60 to 70 million years ago. फोल्ड माउंटेन्स को यंग फोल्ड माउंटेन्स भी कहते हैं क्या? जो 60 to 70 मिलियन ईयर्स पहले बने हुए हैं. द आंसर इज ट्रू. नेक्स्ट इज ब्लॉक माउंटेन्स आर फॉर्म ड्यू टू टेंशन दैट क्रिएट्स फॉल्ट इन द क्रस्ट. ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं ड्यू टू किस वजह से? अर्थ के अंदर जो क्रस्ट लेयर है उसमें कुछ टेंशन्स, कुछ फॉल्ट्स क्रिएट हो जाते हैं. क्या इस वजह से ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं? यस, ट्रू. नेक्स्ट इज माउंटेनियस एरिया आर मोस्ट सुटेबल फॉर ह्यूमन सेटलमेंट. क्या माउंटेनियस एरिया ह्यूमन सेटलमेंट के लिए सुटेबल होता है? No. The answer is false. Because mountainous area is very harsh, so it is not suitable for human settlement. Next is a plain is a low-lying area. Plain जो है वो एक low-lying area, बिल्कुल ही plain area होता है. Mostly formed by the, जो किससे बनता है? Deposition of fertile material. तो क्या ये जो प्लेन एरिया है ये डिपोजिशन फर्टाइल मटेरियल्स के जमने से बनता है? ट्रू. द आंसर इज ट्रू. द लास्ट इज द इंडो गैंगटिक प्लेन इज मोस्टली मेड अप ऑफ ब्लैक सॉइल. जो इंडो गैंगटिक प्लेन है वो ब्लैक सॉइल से बना है? नो, फॉल्स. ये एलुवियल सॉइल से बना है. थैंक यू. Good morning student. I'm Shashi Yadav, your Hindi teacher. Today I will teach you chapter 19 हिंदी वाक्य. वाक्य के बारे में हम एक वीडियो कल भेज चुके हैं आपके पास. इससे आगे इसके अंग हो चुके हैं, इसकी डेफिनेशन हो चुकी है. अब आगे इसके भेद के बारे में पढ़ेंगे. वाक्य के भेद. वाक्य के भेद दो आधार पर किया जाता है. नंबर 1 रचना के आधार पर, नंबर 2 अर्थ के आधार पर. रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य. आइए अब इनके बारे में सह उदाहरण जानते हैं. सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य मीन्स कर्ता और एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहा जाता है. जैसे हाथी झूम रहा है, यहाँ पे कर्ता हाथी है तो यहाँ पे एक ही कर्ता है, इसलिए ये सरल वाक्य है. गीता पुस्तक पढ़ रही है, यहाँ पे गीता कर्ता है और एक ही कर्ता है तो यहाँ पे भी क्या होगा? सरल वाक्य. नेक्स्ट नंबर 2 संयुक्त वाक्य. जिस वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्यों को किसी योजक द्वारा जोड़ा गया हो वह संयुक्त वाक्य कहलाता है. जैसे
डॉक्टर आता है और मरीज ठीक हो जाता है। इस वाक्य में वाक्य और से जोड़ा गया है। दो अलग अलग वाक्य है बट एक दूसरे से योजक चिन्हों से जोड़ा गया है। जैसे डॉक्टर आता है एक वाक्य हो गया, मरीज ठीक हो गया दूसरा वाक्य है। दोनों सरल वाक्य परंतु इनको जोड़ा किससे गया है? और योजक चिन्ह से, इसलिए ये संयुक्त वाक्य बन गया। जैसे मोर नाच रहा है और मोरनी डाल पर बैठी है। यहाँ पर भी मोर नाच रहा है एक सरल वाक्य है, मोरनी डाल पर बैठी ये भी एक सरल वाक्य है बट इसे योजक चिन्ह और से जोड़ा गया है, इसलिए ये क्या हो गया? मिश्रित वाक्य। नंबर 3 मिश्र वाक्य। इस वाक्य में एक उपवाक्य मुख्य यानी प्रधान होता है तथा अन्य उपवाक्य आश्रित होते हैं। आश्रित मीन्स दूसरे वाक्य पे डिपेंड होते हैं। गांधी जी ने कहा था कि सदा सत्य बोलो। यहाँ पे गांधी जी ने कहा था मुख्य वाक्य और सदा सत्य बोलो ये आश्रित उपवाक्य है और इसे जोड़ा किससे गया है? की योजक से। एक बात दूसरी बात के ऊपर डिपेंड है, वो पूर्ण तभी होती है जब दोनों सेंटेंस साथ में बोले जाएं। ऐसे ही जहाँ जहाँ हम गए हमारा भव्य स्वागत हुआ। इसमें आश्रित वाक्य जहाँ जहाँ हम गए हमारा भव्य स्वागत हुआ, यहाँ पे ये मुख्य उपवाक्य है। इसलिए प्राय, की, क्योंकि, जो, जिसे, जिसने, कहा, जब ये आदि वाक्य जहाँ से शुरू होते हैं वो आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। Good morning, students. So this is for class 6th, chapter 1, The Balloon Man. You have already covered word meanings, true, false, and multiple choice questions. Now come to the question answers. This is as per your syllabus of Essay 1 examination. So the first question is, when does the balloon man come? Means कि balloon man कब आता है? And the answer is he always comes on market days. मतलब जब मार्केट में बहुत सारे लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं हमेशा बलून मैन तभी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज ही होल्ड इन हिज हैंड्स? मतलब उसने अपने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? तो ही होल्ड्स अ लवली बंच ऑफ कलरफुल बलून्स इन हिज हैंड। मतलब उस अपने हाथ में क्या पकड़ता है? वो एक बहुत ही प्यारा सा कलरफुल बलून्स का गुच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज ही नेवर थिंक ऑफ? वो किस बारे में कभी नहीं सोचता है? आंसर इज ही नेवर थिंक्स ऑफ हिज लंच। वो अपने लंच के बारे में कभी नहीं सोचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट हैपन्स व्हेन देयर इज स्ट्रॉन्ग विंड? जब तेज हवा चलती है तब क्या होता है? आंसर इज व्हेन देयर इज स्ट्रॉन्ग विंड द balloons tug and tug like anything. तो बलून्स पर क्या होता है? एक पुल आता है। कब? जब तेज हवा चलती है। Your last question is, what does the poet think will happen someday? मतलब पोइट क्या सोचता है कि किसी दिन क्या होगा? आंसर इज द पोइट थिंक्स दैट, वो ये सोचता है कि someday probably the balloon man will let the balloons go in the sky. वो क्या सोचता है कि किसी दिन ये हो सकता है कि जो बलून मैन है वो अपने सारे बलून्स को हवा में छोड़ देगा। किस लिए? टू सी देम सेलिंग हाई, ताकि वो हवा में बहुत ऊपर
आसमान में बहुत ऊपर तैर सकें। सेलिंग मीन्स तैरना। So learn all the question answers. These will come into your examination. So thank you, students. Good morning, students. Today 25 November, Wednesday. Let us start the revision of chapter 9, class 6th, subject science, body movement, long question answer. First question is, how do earthworm, first second fish, third snake move? कैसे मूव करते हैं उनके बारे में आपको बताना है। फर्स्ट आता है आपका earthworm. Earthworm have an elongated and cylindrical body with no bones in it. उनकी बॉडी में क्या नहीं होते, बोन्स नहीं होते. इट इज़ डिवाइडेड इनटू मैनी रिंग लाइक सेगमेंट्स दैट हैव मसल्स. वो डिवाइड किया हुआ है मैनी रिंग लाइक सेगमेंट्स स्ट्रक्चर जो होता है उसमें, और वो किससे बने हुए होते हैं, मसल्स से. अर्थवर्म मूव वन प्लेस टू अनदर बाय द continuous contractions and relaxation of their muscles in the skin. वो contraction और relaxation के थ्रू continuous, जब उनका relaxation और contraction चलता है उससे वो क्या करते हैं, मूव करते हैं. Hence earthworm makes small move using muscles only. वो धीरे धीरे मूव करता है. कौन, आपका जो अर्थवॉर्म है वो धीरे धीरे मूव करता है. सेकेंड, मूवमेंट इन फिश. फिश आर वर्टिब्रेट्स. दे हैव बोनी स्केलेटन. उनका जो स्केलेटन होता है वो बोनी होता है. दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी दैट हेल्प्स टू मूव इन वाटर. वो हेल्प करती है उसको वाटर में मूव करने के लिए. फिश यूज देयर फिन्स एंड मसल्स फॉर स्विमिंग. यूज करते हैं अपनी फिन्स को और मसल्स को, मस्कुलर टेल फॉर स्विमिंग. और टेल जो होता है उसको किसके लिए यूज करते हैं, स्विमिंग के लिए. थर्ड, मूवमेंट इन स्नेक्स. A snake has flexible backbone and many interconnected muscles that helps it to slither और स्लाइडिंग मोशन. जो स्नेक होता है आपका वो एक लॉन्ग फ्लेक्सिबल उसकी बैकबोन होती है, वो इंटरकनेक्ट हो जाती है मसल्स के साथ में और हेल्प करती है उसको स्लाइडिंग मोशन में. रोटेट करके जैसे घूमता है ना एस वाली लूप में, वैसे घूमने के लिए उसको हेल्प करती है. वाइल मूविंग द स्नेक बॉडी कर्व्स इनटू मैनी एस शेप लूप. जब स्नेक मूव करता है तो एस शेप लूप एक होता है, अल्टरनेट साइड्स में एस शेप बनती है उसकी. ईच लूप प्रेसेस अगेंस्ट द ग्राउंड एंड गिव ए फॉरवर्ड पुश. और हर एक लूप उसकी प्रेस करते हुए जब वो ग्राउंड को चलता है तो जब वो ग्राउंड को पुश करता है तो आगे की ओर फॉरवर्ड चला जाता है. दीज आर द मूवमेंट ऑफ अर्थवॉर्म, फिश एंड स्नेक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वट इज जॉइंट. जॉइंट क्या है. एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ जॉइंट्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी. आपको एक्सप्लेन करने की वेरियस टाइप ह्यूमन बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं जॉइंट्स के, वो कौन कौन से हैं. फर्स्ट इज जॉइंट्स. जॉइंट इज ए प्लेस वेयर टू बोन्स मीट. जॉइंट क्या होता है, एक प्लेस है जहाँ पे दो बॉडी मीट करती है. देर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन द बॉडी. टू डिफरेंट टाइप्स आपकी बॉडी के जो जॉइंट्स हैं उनके लिए. फर्स्ट इज इमूवेबल और फिक्स्ड जॉइंट. फर्स्ट है आपका इमूवेबल और फिक्स जॉइंट. जो इमूवेबल फिक्स जो जॉइंट है जो मूव नहीं हो सकते. सेकंड है मूवेबल जॉइंट. फर्स्ट मूवेबल जॉइंट, ये जॉइंट क्या करता है, लिटिल अलो लिटिल और नो मूवमेंट लाइक द बोन्स ऑफ द स्कल एंड पेल्विस. वो आपके कौन से हैं, आपका इमूवेबल जॉइंट. मूवेबल जॉइंट, मोस्ट ऑफ द जॉइंट्स in our body are movable joints. Movable joints have cartilage between them. Movable joints होते हैं उनके बीच में cartilage होता है, ठीक है. और जो आपके immovable joints होते हैं उनके बीच में cartilage नहीं होता. Movable joints को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट, ball and socket joints. सेकेंड, pivot joints. थर्ड, hinge joints. फोर्थ, ग्लाइडिंग जॉइंट है. तो जो आपके इमूवेबल जॉइंट्स हैं उनको तो फिक्स, वो तो कैसे होते हैं, फिक्स होते हैं. उनके बीच में, उन जॉइंट्स के बीच में आपका कार्टिलेज नहीं होता है. वो लिटिल करते हैं, लिटिल या नो मूवमेंट ऐसे
जो जॉइंट्स होते हैं, और मूवेबल जो आपकी बॉडी को मूव कर देते हैं, जॉइंट करे आपकी बॉडी क्या हो जाए, मूव हो जाए। और उनके बीच में क्या होता है, आपका कार्टिलेज होता है। उसके 4 पार्ट्स थे, बाल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवेट जॉइंट, हिंग जॉइंट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट। ठीक है Students, this is for class 6th. Students, as you all know, in previous video we completed with the two notice. Now let's start with the third one. Students, as you all know, we have done first notice, yes, in the previous video. Now let's start with the second notice, and I'm writing in the notebook. You will write it down in your notebook. Okay students, this is your homework. You have to write it down in your fair notebook. Now let's start. You are Agast Singh. आपका नया नेम गिवन है, द हेड बॉय ऑफ दून स्कूल देहरादून। अब इस क्वेश्चन में आपको स्कूल नेम गिवन है, तो आप इसी स्कूल का नेम यूज़ करोगे नोटिस लिखते टाइम। ओके, नेक्स्ट है, द स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ डे ट्रिप टू जिम कॉर्बेट फॉर क्लास 6 एंड अबव स्टूडेंट्स। अब आप को नोटिस लिखना है स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करते टाइम कि आपको जिम कॉर्बेट जा रहे हैं पिकनिक के लिए, ट्रिप के लिए, 1 डे ट्रिप है, और इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन आप स्टूडेंट्स को देंगे विद ऑल द डिटेल्स। ओके, कि किस टाइम पे स्कूल आना है, वापस किस टाइम पे आएंगे, डिपार्चर किस टाइम है, और हम वहाँ पे, मतलब एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन इन द notice. Write a notice with all the details to inform about the trip. ट्रिप के बारे में आपको सारी डिटेल्स उन बच्चों को देनी है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नोटिस। इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द वॉच लॉस्ट, एंड नाउ टुडे आई विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट नोटिस, एंड दैट इज ट्रिप, regarding trip. Okay, first of all you are going to write it down the name of the school, that is Doon School Dehradun, DEHRADUN, Dehradun. Okay, then notice in capital letter, you are writing down notice. ओके, एंड देन लेफ्ट साइड पे आप यहाँ पे डेट लिखेंगे, और डेट है आज की 25 नवंबर 2020। ओके, एंड देन यू हैव टू राइट इट डाउन द हेडिंग। हेडिंग आप इसमें क्या लिखेंगे कि ऑर्गेनाइजिंग अ ट्रिप। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग, ORGANISING, organizing a TRIP, ट्रिप। ओके, सब कुछ आप अभी तक क्या लिखेंगे, इसको आप कैपिटल लेटर्स में ही लिखोगे। ओके, उसके बाद अब हम क्वेश्चन स्टार्ट, अपना नोटिस स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, दिस इज़ टू inform to all the students from classes 6th to 12th we are inform to the students from classes 6 to 12th that our school is organizing 1 day trip to Jim Corbett interesting students will give their names to undersigned.
we will depart on 30th November 2020 and charges 500 ठीक है, आपने इतने इन्फॉर्मेशन उनको दे दी है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे जो क्वेश्चन में हमें नेम गिवन था, और क्वेश्चन में हमें क्या नेम गिवन था, ऑगस्ट सिंह। सो ऑगस्ट सिंह यू आर राइटिंग द नेम, ऑगस्ट सिंह, और यहाँ पे हेड बॉय, क्योंकि हेड बॉय इज़ द पोजीशन जो आपको इसमें मेंशन करनी ही करनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप इसमें बॉक्स बनाना बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। यू हैव टू मेक द बॉक्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी completed with the topic notice. We have done 3 notices. You have to write it down only 3 notices in your fair notebook. This is your homework. Please be careful, and very short notices are there. Thank you everyone. I hope you understand this video.